السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ پیش کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے خبریں۔ پاکستان کی حکومت نے قومی اقتصادی سروے سن 2023-24 جاری کر دیا ہے، جس کے سامنے آنے والے خد و خال کے مطابق مالی سال میں مجموعی ترقی یعنی جی ڈی پی 3.5% کے ہدف کے مقابلے میں صرف 2.38% رہی۔ اقتصادی سروے کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت اہم معاشی اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی، البتہ زراعت کے شعبے نے توقع سے زیادہ نتائج دیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ زراعت کے شعبے نے جی ڈی پی گروتھ کو بہت سہارا دیا ہے۔ اقتصادی سروے میں عالمی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، عالمی اور ملکی مالیاتی سختی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کو ناکامی کا باعث قرار دیا گیا۔ رواں مالی سال میں مہنگائی کا ہدف 3.5% سے زائد ریکارڈ ہوا۔ بجٹ میں مہنگائی کا ہدف 21% تھا، لیکن اوسطاً مہنگائی 24.5% ریکارڈ ہوئی۔ منگل کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی پلان بی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مالیاتی پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے بہت مثبت بات چیت ہوئی ہے، جس کی بڑی وجہ 9 ماہ کے پروگرام میں بہتر کارکردگی دکھانا ہے، جس سے اعتماد پیدا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی بینک سے ملنے والی رقم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس رقم سے پاکستان میں پن بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سب انہیں خاموش کرانے پر لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح دھاندلی چھپ جائے۔ اڈیالہ جیل میں مقدمے کی سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو پیغام دیا کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین اکبر خان نے منگل کے روز پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کے نتیجے میں ایک طرف لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں تو دوسری طرف اس صورتحال سے عسکریت پسند تنظیموں اور اس سے منسلک جنگجوؤں نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ کمیشن کے اراکین نے حکومتی اداروں اور بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں سے دہشت گردی کے خاتمے اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی عبوری حکومت کے مطابق پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی مسلسل آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یومیہ لگ بھگ 2000 افراد واپس اپنے ملک آ رہے ہیں۔ افغان طالبان نے دونوں ممالک سے واپس آنے والے مہاجرین کی ان کے آبائی اضلاع میں دوبارہ آباد کاری اور معاونت کے لیے ایک کمیشن قائم کیا ہے۔ طالبان پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی ملک بدری کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ زور دیا جاتا رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بین الاقوامی قانون کے تحت بہتر ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ صرف ان افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور وہ ان قوانین پر عمل کر رہے ہیں جن پر دنیا کے دیگر ممالک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے عمل کرتے ہیں۔
भारत की हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी की नजरियाती सरपरस्त तंजीम आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इंतखाबी नताइज आने के बाद पहली बार अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने एक खिताब में कहा कि हकीकी सेवक यानी खादिम के अंदर गुरूर नहीं होता, वो किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर काम में यकीन रखता है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान बाज रहनुमाओं की जानिब से नाशाइस्ता लबुल लहजा इख्तियार करने पर भी तशवीश का इजहार किया। भागवत के बयान को बीजेपी और आरएसएस के दरमियान बढ़ते हुए मुबैना दरपर्दा इख्तलाफात के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनमें एक चैलेंज ये भी है कि वजीर आजम मोदी बीजेपी और आरएसएस के दरमियान हम आहंगी कैसे कायम रख सकते हैं। सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मनासिक हज के आगाज से कबल पीर को मक्का में परेड के दौरान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फोर्सेस ने हज के दौरान किसी भी किस्म के मुमकिना खतरात से निमटने के लिए मशक़ें की। मनासिक हज का आगाज 14 जून से होगा। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने अमरीका का तैयार करदा मुसव्वदे करारदाद सिफर के मुकाबले में 14 वोटों से मंजूर कर लिया है, जिसमें गजा में जंगबंदी समझौते की हिमायत की गई है। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मंसूबे के हक में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के वोट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि दुनिया लड़ाई के खात्मे के लिए हर मुमकिन तौर पर अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ की हिमायत करती है। उन्होंने मंगल को तल अबीब में इसराइली हुक्काम से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। ब्लिंकन ने कहा कि वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने पीर को देर गए एक मुलाकात के दौरान तजवीज़ से अपनी वाबस्तगी का इरादा किया। नेतन्याहू से अपनी बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को यकसा तवीलुल मुद्दत सिक्योरिटी और इस्तेहकाम फराहम करने की कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। हमास ने अभी तक इस तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है। अस्करियत पसंद ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मक़दम किया है और मुआहिदे के वसी खाके की हिमायत की है, लेकिन उस पर अमल दरामद की यकीन दहाने का मुतालबा किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक वज़ीर खारजा ब्लिंकन ने फ़लस्तीनियों के लिए $404 मिलियन की नई अमरीकी इमदाद का भी ऐलान किया। उन्होंने अमरीकी नाक़िदीन समेत दीगर ममालिक पर भी जोर दिया कि वो गजा के इंसानी बहरान से निमटने के लिए मदद दें। इसराइल की फौज ने तस्दीक की है कि उसके 4 फौजी रफा में एक धमाके में हलाक हो गए हैं। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज के बाद से अब तक इसराइली फौज के 299 एहलकार मारे जा चुके हैं। इसराइली नशरियाती इदारे I24 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फौज ने पीर को इन फौजियों की मौत की तस्दीक की। फौज ने इस धमाके की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। यूरोपीय यूनियन के कर्ज देने वाले इदारे यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंगल को कहा कि वो यूक्रेन के बैंकों और यूरोपीय यूनियन की कंपनियों के लिए माली जमानतें फराहम करना शुरू कर देगा। बैंक ने कहा कि यूक्रेनी बैंकों की जमानतों से यूक्रेन की मईशत को फर्मों के लिए €1 बिलियन से ज्यादा के कर्जों को मुतहर्रिक करने की तवक्को है और ये कि स्कूलों, अस्पतालों और समाजी रिहाइश जैसी बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए अलग से मजीद $100 मिलियन फराहम करेगा। इस मंसूबे का ऐलान बर्लिन में मुनक्किद होने वाली यूक्रेन की तामीर नौ की कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने मंगल को बताया कि यमन में तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती डूब गई, जिस पर 200 से ज्यादा अफराद सवार थे।
कम अज कम 49 अफराद हलाक हो गए। कर्न अफ्रीका से हर साल हजारों तारकिन वतन तनाज़ात, कुदरती आफात या नाकिस माशी सूरत हाल से बचकर तेल की दौलत से मालामाल खलीज तक पहुंचने के लिए बहर अहमर अबूर करने की कोशिश करते हैं। अफ्रीकी मुल्क मालावी के सदर लाजारस चकवेरा ने मंगल को कहा कि नायब सदर सालोस चिलीमा और 9 दीगर अफराद को लेकर जाने वाला तैयारा जंगल में गिरकर तबाह हो गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। उन्होंने एक टेलीविजन खिताब में कहा कि तैयारा मिल गया है और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत दुख और अफसोस है कि ये एक खौफनाक सानहा था। नायब सदर का तैयारा परवाज के थोड़ी देर बाद ही रडार से गायब हो गया था। क्रिकेट। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में मैचों का सिलसिला जारी है। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज VOA उर्दू @ पर। T20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।